Assalamu alaikum. Dear students, welcome to lecture number 21 of Introduction to Management, MGT 101. Let's see what we have discussed in the last lecture. In lecture number 20, remember we discussed the topics from chapter number 9, and the topics were organizational design, factors influencing centralization and decentralization, contingency factors, common organizational designs, and contemporary organizational designs. Now in today's lecture we are going to start chapter number 10, and this chapter is about human resource management. So let's see what we are going to discuss today. Today first we are going to discuss what is the importance of human resource management as a subject or as a body of knowledge. Then we are going to study the human resource management process, also abbreviated as HRM process. Then we will discuss managing human resource, and in the last part of the lecture we will be discussing the selection. So dear students, let's start chapter number 10, and the chapter number 10 is about human resource management. Students, when we talk about resources, and we have been discussing different types of resources off and on. Now these resources, as we have discussed earlier, can be human resources, technological resources, or financial resources. You see, when we talk about resources, these resources are important, and their study is also very important, because these resources tends to provide any organization with a competitive edge. Now when we talk about competitive edge or we talk about competitive advantage, then it's important that we need to manage our resources properly and efficiently. Now human resources are a little bit technical in management. Reason being is that not only we are managing the workforce or managers within the organization, we can't consider them as a machine. We cannot give them orders and they will be obeying it as it is. So there comes another dimension, which is behavioral dimension. So we need to understand the behavior of the humans which we are managing. And as we all know that not every human is similar, therefore we need to come up with a policy which should be acceptable by majority. So let's start this chapter, the chapter 10, which is about human resource management. Now why is it important? As briefly explained in a minute ago, human resource is important because these resources provide the main intuition or experience or judgment regarding various decisions which are taking place inside the organization. You can consider them as a kind of fuel which is providing an overall energy to the organization. Without humans in the organization, you cannot run any kind of setup. So when we talk about humans, they are very important, and they will be considered as rather the most important resource as compared to other resources which are there in the organization being utilized. So let's talk about the importance. Why these resources such as human resources are important. The first point says that as a significant source of competitive advantage. This is what I have already explained to you, that human resources are important because they tend to provide an organization with a competitive advantage.
लेट्स सपोज दैट वी आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, तो ऑब्वियसली वट एवर वी आर डूइंग वी विल बी डूइंग इट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली देन द अदर्स. So the first thing, that is why managing human resource is important. The answer is that human resources tends to provide any organization with the competitive advantage. अगर हमारे पास अच्छे काबिल लोग होंगे, स्किल्ड लोग होंगे, टेक्निकल लोग होंगे, एक्सपीरियंस लोग होंगे, हार्ड वर्किंग लोग होंगे, तो फिर हमें अपने competitors के मुकाबले में एडवांटेज मिलेगा. So we say people oriented human resource creates superior shareholder value. अगर हमारे पास HR रिलेटेड पॉलिसीज अच्छी होंगी, यानी ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड पॉलिसीज जो होंगी वो वेल डेवलप्ड हैं, इम्प्लीमेंटेड हैं, और हमारी वर्कफोर्स जो है वो खुश है, तो ना सिर्फ ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड एक अच्छा कल्चर क्रिएट करेगा, बल्कि जो हमें बाहर से लोग देख रहे हैं, जो हमारे अदर शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अच्छा मैसेज कन्वे करेगी. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टूल वन कैन अचीव कॉम्पिटिटिव सक्सेस थ्रू पीपल बाय ट्रीटिंग एम्प्लॉयज एज पार्टनर्स. एक नई स्ट्रैटेजी इवॉल्व हुई है और वो आपको टेक्स्ट में भी मुख्तलिफ जगहों पे डिस्कशंस में मिलेगी कि वी डोंट कंसिडर वर्कर्स एज जस्ट एन एम्प्लॉई नाउ मोर. हम वर्कर्स को अपने एक एम्प्लॉय के तौर पे ही नहीं सिर्फ समझते, वी नाउ कंसिडर देम एज अवर पार्टनर्स. हम उनको एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं, और ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी में डेवलप हो चुकी है कि जो प्रूव हुई है कि दैट इज़ बीन अ सक्सेसफुल वन. सो ऑर्गेनाइजेशंस अब अपने एम्प्लॉयज़ को मुख्तलिफ मैकेनिज़्म से या तो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करती है, या उनको किसी हद तक अपने कंपनी के शेयर्स भी देती है, या उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में उनको एम्पावर करती है, ताकि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपने आप को एक पार्टनर समझें किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ एक वर्कर या एम्प्लॉई ना समझें. So why it is important? Because it is a strategic tool. If we are taking good care of our labor, we are taking good care of our employees, then obviously the situation will be very good within the organization. और फिर जब एक अच्छा कल्चर प्रमोट होता है तो फिर everyone will be working open wholeheartedly, हार्ड वर्किंग पर्सनल्स होंगे आपके पास, और एक अच्छा कल्चर डेवलप होगा. The third point is to improve organizational performance. बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो खुश हैं, वो सेटिस्फाइड हैं, वो कंटेंट हैं, एंड दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम देम, तो फिर जो कुछ काम उनको असाइन होगा और वो उसको सही तरीके से कर रहे होंगे, तो फिर ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सो दैट इज व्हाट द स्लाइड इज टेलिंग अस, दैट हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस लीड टू बोथ हाई इंडिविजुअल एंड हाई ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. अगर आप एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आपको अच्छी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, और फिर क्या होगा कि आपके वर्कर्स या आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे. जब वो ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो ना सिर्फ वो परफॉर्मेंस उनके लिए एक अच्छा मैसेज होगा, उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा होगा, बल्कि उसकी वजह से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी ग्रो करेगी. तो अभी तक हमने इस स्लाइड के ऊपर 3 इंपॉर्टेंट रीजन देखी. नंबर 1 कि इट सर्व्स एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, नंबर 2 इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक टूल, एंड नंबर 3 इज दैट इट इम्प्रूव्स योर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. जब भी हम अच्छी HR रिलेटेड पॉलिसीज़ लाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड पॉलिसीज़ लाएंगे, तो हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा. ये एक स्ट्रैटेजी भी है, और ओवरऑल हमारी जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी इम्प्रूव करेगी. अब कुछ एग्जांपल्स हैं
और ये एग्जांपल्स हैं कि अच्छी हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस क्या है, जहाँ पे आप ऐसी वर्क प्रैक्टिसेस क्या कौन सी हैं जिससे परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है। सेल्फ मैनेज टीम्स, ऐसी टीम्स का कॉन्सेप्ट कि जिसमें जो लोग हैं वो खुद एक आइडिया डेवलप करते हैं और उस आइडिया के लिए या कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं और फिर खुद उस टीम को मैनेज करते हुए अपनी जगह पे अपनी वर्क एनवायरनमेंट में कोई बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। सेल्फ मैनेज टीम्स का मतलब यह है कि दे जनरली डू नॉट रिक्वायर एनी इंस्ट्रक्शन, ऑल्दो उनको डिफरेंट वर्क रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर भी वो अपने वर्क एरिया में अपनी इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, and they are trying to find out its solution also, and they are managing it by themselves. Number 2 is decentralized decision making. इसमें हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि we empower our employees or low levels of management to take the decisions on their own. हम उनको empower करते हैं, हम उनको decision making की powers delegate करते हैं कि वो खुद से किसी हद तक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हों और डिसीजन मेकिंग कर सकें। सो जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि आपने उनको जब एम्पावर किया है और आपने उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया है तो फिर वो डिसीजंस को ओन करेंगे और फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि जो काम वो करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के काम आएगी। The third point is training programs to develop knowledge, skills and abilities. ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जो ओवरऑल वर्कर्स की एबिलिटीज़ को, उनके स्किल्स को या उनके नॉलेज को इन्हेंस करे, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमेशा देखे गए हैं कि वो एक हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर देती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। इसका मतलब है कि हमें किस चीज़ पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, अपने वर्कर्स पे, अपने ह्यूमन रिसोर्स पे। हमें उनकी एबिलिटीज़ को इन्हेंस करने की ज़रूरत है, हमें उनके स्किल्स को इन्हेंस करने की ज़रूरत है, हमें उनके नॉलेज को इन्हेंस करने की ज़रूरत है। एंड इफ़ वी आर डूइंग दैट देन दैट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। So I think we can now say that there exists a direct relationship between the steps we are taking for the improvement of human resource in the organization and the impact which is increase in the organizational performance. The next point is flexible job assignments. Flexible job assignments means it means rather two things over here to me. The first thing is that we are assigning different tasks to our individuals or workers. अगर हम उनको constantly एक ही किस्म के टास्क देंगे तो फिर हम उनकी तमाम different abilities से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे. So we need to be flexible. Flexible means हमें उनको variety of job assignments भी देनी चाहिए. Flexible ये है कि हमें बहुत ज़्यादा rigid rules और regulations को follow नहीं करना चाहिए. Because remember when we discussed last lecture तो हमने ये कहा था कि ऐसी organizations जहाँ पे फॉर्मलाइजेशन लो हो, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन में रिजिडिटी हाई ना हो, रिजिड ना हो रूल्स, वहाँ पे वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को न्यू आइडियाज़, फ्रेश आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है. ओपन कम्युनिकेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, यानी हम बहुत ज़्यादा हायरार्की को फॉलो नहीं कर रहे. वी आर allowing our human resource to share their ideas, share their views, discuss their opinions with us. So when these things are there, जब हम human resource को openly allow कर रहे हैं कि अगर कोई अच्छा idea उनके ज़हन में है, अगर कोई वो बात उनके ज़हन में है, कोई issue वो clarify करना चाहते हैं, so they can openly discuss, so these organizations tends to develop into a high performance organization. The next point is very important, that is performance based compensation. देखें, at human resource policies के मुताबिक whenever we are asking someone to do some job for us,
so we'll be paying them according to a certain contract. अब हमने उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, they will be working for us, but that compensation should be performance based. यानी जो अच्छा काम करेगा उसको उसकी बेसिक सैलरी तो मिलेगी, बट वी नीड टू गिव हिम सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड ताकि वो मोटिवेटेड हो और वो उस मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट टाइम और अच्छा काम करे और ज़्यादा काम करे. सो बेस सैलरी तो होना ठीक है, लेकिन हमें अपने इन्वायरमेंट में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन सिस्टम डेवलप करना चाहिए. और उससे क्या होगा कि ज़्यादा लोग मोटिवेटेड होंगे काम अच्छा करने के लिए, और फिर जब वो काम अच्छा करेंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो भी इम्प्रूव करेगी. द लास्ट पॉइंट से स्टाफिंग बेस्ड ऑन पर्सन, जॉब एंड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट. यानी हमें ऐसी स्टाफिंग पॉलिसीज बनानी चाहिए, यानी हमें हायरिंग पॉलिसीज या जो जॉब प्लेसमेंट पॉलिसीज हैं, यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ किसको प्लेस करना है, वो हमें पॉलिसीज जो हैं वो किस चीज़ को सामने रख के बनानी चाहिए, पर्सन और जॉब को. यानी जिस किस्म की जॉब है उसको हमें मैच करना चाहिए पर्सन के मुताबिक, या ये कह लें कि पर्सन को हमें मैच करना चाहिए जॉब के अगेंस्ट. सो हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये जो पर्सन है ये सूटेबल है इस जॉब के लिए. अगर वो सूटेबल है तब हमें उसको प्लेस करना चाहिए. अगर वो थोड़ा सा सूटेबल नहीं है या रादर अनसूटेबल है तो अगर हम उसको प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, कुछ अरसे बाद वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा, और फिर प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होंगे पर्सन के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी. दूसरा क्या हमने कहा कि स्टाफिंग किस बेस पे होनी चाहिए, पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशनल फिट. और ये हमने कहीं शुरू में किसी चैप्टर में ये कहा था कि जब भी हम किसी बंदे को सिलेक्ट करें, हायर करें, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि उसका जो कल्चर है, जिस कल्चर से वो बिलोंग कर रहा है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से मैच करता है या नहीं. यानी जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन अच्छा समझती है, जो एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन अच्छा समझती है, क्या वो पर्सन भी उन चीज़ों को उसी तरह अच्छा समझता है या नहीं. सो स्टाफिंग में हमें दो चीज़ें देखनी है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एंड द राइट पर्सन फॉर द राइट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो जिस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या जो हम पर्सन सिलेक्ट कर रहे हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स, बिलीव्स और वैल्यूज़ को भी उतना ही इम्पोर्टेंट समझता है जितना ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि इम्पोर्टेंट समझा जाए. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसी वर्क प्रैक्टिसेस के, ऐसे कामों के कि जो ऑर्गेनाइजेशंस को हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशंस में कन्वर्ट कर देती है. अब हम डिस्कस करने लगे हैं एचआरएम प्रोसेस. स्टूडेंट्स, ये एचआरएम प्रोसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप बहुत ज़्यादा गौर से सुनने और समझने की ज़रूरत है. यू सी, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन, every organization has one way or another some kind of human resource management process or setup. अब जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, जाहिर सी बात है आपने उसे किसी न किसी मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो हायर करना है, किसी न किसी मैकेनिज्म के थ्रू आपने उसकी ट्रेनिंग्स करनी है, फिर उसकी डेवलपमेंट के लिए भी कुछ करना है, फिर उसको आपने उसकी इवैल्यूएशन करनी है, फिर आपने उसको रिवॉर्ड्स भी देने हैं. सो ये सारी चीज़ें जो हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हायरिंग टिल the step where you are allowing that person to grow within the organization, these are the different steps which are part of the HRM process. सबसे पहले हम एक फिगर के थ्रू देखते हैं, और उससे पहले let's talk about the functions of the HRM process. Functions of the human resource management process क्या है? Number 1, ensuring that competent employees are identified and selected. हम HRM प्रोसेस को क्यों डेवलप करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? पहली चीज़ ये है कि ये इंश्योर करने के लिए कि जिस पर्सन को हम हायर कर रहे हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है. सो वी नीड टू इंश्योर दैट द पर्सन वी हैव सेलेक्टेड or identified is the right person. So
ensuring that competent employees are identified and selected. That is what the first aim of the HRM process. The emphasis किस चीज़ पे है? competent employee पे, यानी जिस पर्सन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट है, वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सही है, वो मेहनती है, वो लायक है, वो काबिल बंदा है जिसको हम हायर कर रहे हैं. सो एक अच्छा HRM प्रोसेस क्या होगा कि जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई भी करे और उसको सिलेक्ट भी कर सके. ये नहीं है कि हमने एक बंदे को इनिशियली तो सिलेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, शॉर्टलिस्ट कर लिया, लेकिन लेटर ऑन हम इंटरव्यूज में उसको नहीं रखें, तो फिर वो हमारा HRM प्रोसेस जो है वो वैलिड नहीं है, वो अच्छा नहीं है. सो एक अच्छा HRM प्रोसेस क्या होगा कि जिसमें हमारे पास ऐसा प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसमें हम राइट पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और राइट पर्सन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉइज विद अप टू डेट नॉलेज एंड स्किल्स टू डू देयर जॉब्स. एक अच्छा HRM प्रोसेस वो होगा कि जो वो टाइमली अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज को और उनकी ट्रेनिंग नीड्स को, डेवलपमेंट नीड्स को आइडेंटिफाई करेगा और उनको वो चीज़ प्रोवाइड करेगा ताकि वो अपनी जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें. सो एक अच्छा HRM प्रोसेस यही नहीं है कि हमने कॉम्पिटेंट बंदे को आइडेंटिफाई कर लिया और उसको सिलेक्ट कर लिया, बल्कि एक अच्छा HRM प्रोसेस जो है वो ये भी रिक्वायर करता है, उसकी ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो उन अच्छे लोगों को जो हमारे पास अब काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करे और जैसे जैसे ज़रूरत पड़े उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपनी जॉब जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें. द थर्ड पॉइंट इज ensuring that the organization retains competent and high performing employees. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला ये था कि आपने राइट पर्सन आइडेंटिफाई किया और उसको सिलेक्ट कर लिया. जब वो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पे आ गया तो फिर आपने ओवर द पीरियड उसकी ट्रेनिंग की नीड्स को आइडेंटिफाई किया और ट्रेनिंग्स उसको दी ताकि वो बंदा जो है, वो पर्सन जो है, वो एम्प्लॉई जो है वो अपनी जॉब अच्छे तरीके से परफॉर्म करता रहे. अब आप ये भी चाहते हैं कि HRM प्रोसेस में एक बिल्ट इन मैकेनिज्म भी हो कि जो इन एम्प्लॉइज में से कॉम्पिटेंट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, जो कॉन्स्टेंटली अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उसको वो सिस्टम रिटेन करे, यानी उनको मोटिवेटेड रखे, उनको डिफरेंट रिवॉर्ड्स दे, कंपनसेशंस भी देता रहे ताकि वो लोग खुश रहें, सेटिस्फाइड रहें. और अगर अच्छे लोग सेटिस्फाइड रहेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे तो इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा है क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव करेगी. लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग अच्छे नहीं हैं, जो काबिल नहीं है या जिनकी परफॉर्मेंस ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स डिक्लाइन पे चली जाती है फॉर एनी रीज़न, या जो मोटिवेटेड नहीं है, सो द सिस्टम शुड बी एबल टू अलाउ दीज पर्सन्स टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन. अच्छे एम्प्लॉयज़ को, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ को, परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ को हम रिटेन करें ये सिस्टम. लेकिन जो अच्छे काम करने वाले नहीं हैं, जो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसको ये सिस्टम जो है वो फिल्टर आउट कर दे, निकाल दे. ये कैरेक्टरिस्टिक है नंबर 3 ऑफ एनी गुड HRM प्रोसेस. So that is what the point number 3 is saying, that they need to ensure that the organization retains competent and high performing employees. Turnover low होना चाहिए. हम अब एक वर्ड हमने पहले भी यूज़ किया था, टर्नओवर. ये मैंने पिछले भी लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. टर्नओवर का मतलब है द रेट ऑफ हायरिंग एंड फायरिंग. दैट इज बेसिकली यू कैन स्ट्रेट अवे से कि जिस रेट पे हम लोगों को हायर कर रहे हैं, और यू कैन ऑल्सो से द रेट ऑफ हायरिंग न्यू पीपल एंड द रेट ऑफ ओल्ड पीपल और ओल्ड एम्प्लॉयज़ लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन. सो अगर हमारे पुराने एम्प्लॉयज़, पुराने वर्कर्स
छोड़ के जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं, और फिर उनकी कमी पूरी करने के लिए हम और लोग हायर कर रहे हैं, तो हम कहेंगे टर्नओवर जो है वो हाई है। और ज़्यादातर और ये उस वक्त होता है जब या तो एम्प्लॉयज़ जो हैं या वर्कर्स जो हैं वो डीमोटिवेटेड हों, या उनको मार्केट में कहीं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ जाए। तो फिर हमने क्या नहीं किया, हमारा HRM प्रोसेस अच्छा नहीं था क्योंकि टर्नओवर हाई है। अच्छे HRM प्रोसेस में टर्नओवर लो होता है, यानी जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखा रहे होते हैं, और फिर हमें उनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती, ना उनको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ रही होती है, बिकॉज दे आर गेटिंग सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड अगेंस्ट देयर परफॉर्मेंस। तो फिर सिस्टम अच्छे तरीके से चल रहा होता है, टर्नओवर लो होता है। लेकिन अगर आपके HRM प्रोसेस में कहीं पे कोई फ्लॉ है, कोई गड़बड़ है, कोई इशू है, या कोई प्लानिंग में इश्यूज हैं, तो फिर क्या होगा कि हमारी HR पॉलिसीज़ जो हैं वो हो सकता है कि इतनी अच्छी ना हो कि हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने में नाकाम हो रहे हैं, और इसी वजह से हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, और उनकी कमी पूरी करने के लिए हमें नए वर्कर्स को या नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ रहा है। सो इन शॉर्ट, एक अच्छा HRM प्रोसेस वो होता है जिसकी वजह से टर्नओवर जो होता है वो लो रहे, यानी वो लोगों को मोटिवेटेड रखे, उनको कंपनसेशंस भी दे, उनको परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए ट्रेनिंग्स भी दे, ओवरऑल हम अच्छे लोगों को हायर कर रहे हो, कॉम्पिटेंट लोगों को हायर कर रहे हो, और मिसमैच ना हो किस चीज़ में। हमने शुरू में कहा वी शुड गुड HRM प्रोसेस ऑल्सो be able to identify the right person for the right job or the right person for the kind of organization we are. So अगर हमने ये सारे काम ठीक किए हैं, हमने सिलेक्शन ठीक की है, हमने एनालिसिस ठीक किया था, that person is competent, that person is the right person for the job, that person is according to the kind of ethics which we believe in as an organization, तो फिर इनिशियल भी मैच अच्छा हो जाएगा। फिर वो जब जॉब पे आएगा तो उसको जॉब परफॉर्म करने में कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, हम टाइमली उसको हेल्प आउट भी करेंगे, ट्रेनिंग्स भी देंगे, हम उसको मोटिवेटेड रखेंगे, वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएगा तो फिर उसको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे और वो खुश रहेगा, तो फिर उसे कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, टर्नओवर लो रहेगा, हमारा भी काम चल रहा है, उस पर्सन का भी काम चल रहा है, वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, हमारी ग्रोथ हो रही है, उस पर्सन की भी ग्रोथ हो रही है, तो फिर हम कहते हैं दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस विच HRM प्रोसेस विच इज़ अ गुड प्रोसेस। तो ये एक अच्छे HRM प्रोसेस की कुछ फीचर्स या फंक्शंस हैं। अब जिस HRM प्रोसेस की मैं बात कर रहा था वो आपके सामने है। नाउ दिस होल प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग स्टेप। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है। इज देयर एनी नीड टू हायर सम न्यू वर्कर्स और मैनेजर्स। सो क्या हमें नए एम्प्लॉयज़ हायर करने की ज़रूरत है, और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो हैं अगर वो इनफ नहीं है तो फिर हमें किस मैकेनिज़्म से लोगों को हायर करना है। क्या हमें कुछ लोगों को प्रमोट भी कर देना चाहिए। सो ये सारे काम कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स कैसे कैसे ग्रो करेंगी, फ्यूचर में हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, उन लोगों में से कितने लोग अभी जो हमारे पास हैं ये काफ़ी होंगे, कुछ प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, गैप कितना है फ्यूचर नीड का और करंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का। तो उस गैप को पूरा करने के लिए हम एक प्लानिंग बनाते हैं, एक प्लानिंग करते हैं जिसको हम HR प्लानिंग कहते हैं। आई रिपीट, HR प्लानिंग में हम ये देखते हैं कि हमारी फ्यूचर की नीड्स क्या है रिगार्डिंग HR ह्यूमन रिसोर्स की, और उसको कितना गैप है उसमें, और हमें उस गैप को कैसे पूरा करना है। क्या हमने एक ही दफ़ा में हायरिंग कर लेनी है, क्या हमने हर 6 महीने बाद हायरिंग करनी है, या हमने किस मैकेनिज़्म से ये करनी है हायरिंग और इस गैप को पूरा करना है। दैट इज़ पार्ट ऑफ द HRM प्लानिंग। नाउ HRM प्लानिंग से आपको 2 चीज़ें नज़र आएंगी कि क्या हमारे पास इस वक्त शॉर्टेज है एम्प्लॉयज़ की, और अगर शॉर्टेज होगी तो फिर हम रिक्रूटमेंट की तरफ जाएंगे, यानी नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे, हायर करेंगे।
और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि हमारे पास जो करंट वर्कर्स हैं वो सरप्लस हों, यानी ज़्यादा हों हमारी नीड के मुकाबले में, तो फिर हमें क्या है, डी रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, हमें कुछ एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना पड़ेगा, हमें किसी हद तक डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग करनी पड़ेगी। डाउन साइजिंग का मतलब है कि करंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का नंबर रिड्यूस कर देना। अब उसके लिए कुछ अच्छा सा वर्ड हमने ढूंढा है जिसको हमने राइट साइजिंग कहा है। हमने ये कहा कि चीज़ें दोनों एक ही हैं, कि हम दोनों में ही एम्प्लॉयज़ को जो है वो निकाल रहे हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि हम उस वक्त राइट साइजिंग में ये कह रहे हैं कि इस वक्त हमारी जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है, नीड्स हैं उसकी, या जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें उसको बेहतर तौर पे मार्केट रिएक्टिव बनाने के लिए या उस स्ट्रक्चर को बेहतर तौर पे अलाइन करने के लिए मार्केट नीड्स के मुताबिक हमने कुछ जॉब्स जो हैं वो रिड्यूस की हैं, जिसकी वजह से हमें आपको फ़ारग करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ हमें आपकी बहुत ज़रूरत थी। सो बात तो एक ही है, बट दिस वेदर इट्स डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग, दैट इज़ पार्ट ऑफ द डी रिक्रूटमेंट, कि आप कुछ एम्प्लॉयज़ को फ़ारग कर रहे हैं। सो HRM प्लानिंग में रिमेंबर दो चीज़ें आपको नज़र आएंगी, आप करंट और फ्यूचर नीड्स को मैच करते हैं। अगर आंसर निकलता है कि हमारे पास शॉर्टेज है तो फिर हम रिक्रूटमेंट करेंगे, हायरिंग करेंगे, और अगर हमें यह नज़र आता है कि जी हमारे पास इस वक्त सरप्लस है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो फिर हम डी रिक्रूटमेंट करेंगे जिसमें हम फायरिंग करेंगे, यानी हम फायर करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको फारग कर देंगे, ले ऑफ कर देंगे, एंड दैट कैन बी ड्यू टू एनी रीज़न, कुड बी डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग। नाउ वंस वी हैव डन द रिक्रूटमेंट में हमने डिसाइड कर लिया कि हमने नए लोगों को हायर करना है, देन वी मूव ऑन टू सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है कि वी नीड टू सिलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द काइंड ऑफ जॉब which we are offering or we are requiring to be done. So जिस किस्म की जॉब है, जिस किस्म की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस किस्म का हमारा कल्चर है, उसके मुताबिक हमने राइट पर्सन को, कॉम्पिटेंट पर्सन को आइडेंटिफाई करना है और उसको सिलेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में हमने राइट पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, सो नाउ वी हैव डन व्हाट, वी हैव आइडेंटिफाइड एंड सिलेक्ट अ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉई। हम इस प्रोसेस में यहाँ तक, यानी प्लानिंग बनाने के बाद, HRM प्लानिंग के बाद हमने रिक्रूटमेंट में गए, रिक्रूटमेंट से हम सिलेक्शन में आए। अब इन तीनों कामों के बाद हम क्या अचीव कर पाए हैं, वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट द कॉम्पिटेंट एम्प्लॉई। अब उससे नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने ये कर लिया, पर्सन हायर हो गया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया है। द फर्स्ट थिंग विल बी टू गिव दैट पर्सन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन का मतलब है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक, उसके रूल्स रेगुलेशन के मुतालिक, उसकी एथिक्स, एथिकल वैल्यूज़ के मुतालिक, नॉर्म्स, बिलीव्स के मुतालिक और प्लान्स के मुताबिक के मुतालिक उस पर्सन को ओरिएंटेशन देना, उसको इंफॉर्मेशन देना, उसको गाइडेंस देना, उसको इन्फॉर्म करना कि ये रूल्स रेगुलेशन है, तुम्हारी ये जॉब है, इन रूल्स को तुमने फॉलो करना है, तुम्हारी अप्रेजल ऐसे होगी, तुम्हें सैलरी फलां तारीख को मिलेगी वगैरह वगैरह। ये तुम्हारे, अगर तुम्हारी अप्रेजल होगी तो कब होगी, कैसे होगी, अगर तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो फिर तुम्हें क्या क्या पॉसिबल रिवॉर्ड्स हैं, हेल्थ केयर पॉलिसीज़ क्या है, और मेडिकल अलाउंस वगैरह ये सब चीज़ें क्या हैं, और कौन कौन से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स हैं जो तुम्हें मिल सकते हैं। ऑल दी थिंग्स आर कन्वेड टू दैट पर्सन एट द वेरी स्टार्ट, द काइंड ऑफ प्रोसेस दैट इज़ नोन एज ओरिएंटेशन। अब हमने ओरिएंटेशन कर दी, ओरिएंटेशन के बाद देयर मस्ट बी अ लिटिल बिट ऑफ ट्रेनिंग। अब ये ट्रेनिंग जो यहाँ पे दी जा रही है, इट्स नॉट अ फुल फ्लैश ट्रेनिंग। यहाँ पे ट्रेनिंग हम देखें, बेसिक क्राइटेरिया जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, जितनी बेसिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है या बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, वो हमने रिक्रूटमेंट के दौरान
इन्फॉर्म कर दिया था और उसके मुताबिक हमने बंदे को सिलेक्ट किया है, आइडेंटिफाई किया है और सिलेक्ट किया है। सो ये नहीं है कि हम उसको बिल्कुल बेसिक्स से दोबारा ट्रेनिंग देंगे, नहीं, हम उसको कुछ ऐसी चीज़ों की ट्रेनिंग देंगे जो उसको इस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने में हेल्प आउट करेगा। यानी कि किसी हद तक उसको हम लेट से उस पर्सन का काम जो है वो डेटा एंट्री करना है, तो अगर उसको कंप्यूटर का नहीं पता तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमने जॉब ये एडवर्टाइज की थी कि द पर्सन शुड बी कंप्यूटर लिटरेट, नो नीड टू नो कि वो कंप्यूटर कैसे यूज़ किया जाता है, बेसिक उसको डेटाबेस एंट्री के स्किल्स आते हों, डेटा एंट्री के मतलब पता हो, उसके मुताबिक हम उसको यहाँ लें। अब जो हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं वो उस सॉफ्टवेयर की दे रहे हैं जो हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है। तो उसमें डेटा, इसमें क्या क्या चीज़ें क्या है, क्या बटन्स हैं, क्या आइकन्स हैं, इसके मुतालिक हम उसको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वो हम ऑन जॉब उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं या उसको बेसिक ट्रेनिंग उसको इनिशियली डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जो हम पढ़ेंगे, उसको सिमुलेशन में भी बता सकते हैं, यानी उसको थोड़ी बहुत ऐसी ट्रेनिंग दे दी जो एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए वैलिड है। हाँ, बेसिक स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो पूरी करता है। सो नाउ इन दो कामों के बाद, यानी ओरिएंटेशन के बाद और ट्रेनिंग देने के बाद, हमने क्या अचीव कर लिया? वी हैव बीन एबल टू प्रोवाइड द एम्प्लॉय विद अप टू डेट स्किल्स एंड नॉलेज। बिल्कुल रिसेंट जो काम अभी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है उसके मुताबिक जो स्किल्स या जो नॉलेज रिक्वायर्ड है वो हमने उसको प्रोवाइड कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। उस बंदे ने काम करना शुरू कर दिया। नाउ कुछ अरसे बाद वी विल बी एनालाइजिंग दैट पर्सन्स परफॉर्मेंस, और दैट इज व्हाट द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंपोनेंट इज। We need to identify, we need to develop a certain performance management system कि जो उस एम्प्लॉई की, उस वर्कर की परफॉर्मेंस को प्रॉपरली एनालाइज कर सके और ये डिसाइड कर सके कि क्या इस पर्सन ने जो जॉब है वो सही परफॉर्म की है या नहीं। अब इस बेसिक इनपुट आउटपुट के बाद, कि आउटपुट क्या इस सिस्टम से निकल रही है कि क्या इस बंदे ने जो काम है वो सही किया है या नहीं, क्या जो काम उसने सही किया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत कोई एक्सेलेंट काम किया है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी की हैं कि नहीं की हैं। इन आउटपुट्स की बेसिस के ऊपर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने उसको किस किस्म की कंपनसेशन देनी है और ये किस किस्म के हमने उसको बेनिफिट्स देने हैं। अब कंपनसेशन क्या है? हम उसको कंपनसेट कर रहे हैं कि तुमने जो काम किया है, जितनी एफर्ट्स की हैं उसकी हम तुम्हें कंपनसेट कर रहे हैं, जितने आवर्स तुमने लगाए हैं उतनी आवर्स के तुम्हें हम कोई पेमेंट्स दे रहे हैं, कोई बेनिफिट्स दे रहे हैं। बेनिफिट्स का मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप उसको कहते हैं कि जी हम तुम्हें जो है वो तुम्हारा हमने जो है वो हाउस अलाउंस जो है, होम अलाउंस जो है वो बढ़ा दिया है, या हमने तुम्हारे ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो बढ़ा दिया है, तुम्हें हमने बेनिफिट दिया है क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया था, लिहाजा हम तुम्हें जो है वो कुछ बोनस दे रहे हैं, 5 डेज या 15 डेज का सैलरी तुम्हें बोनस दे रहे हैं। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स अदर देन द बेसिक कंपनसेशन जो उसको हम दे रहे हैं। अब ये चलता रहा। अब एट द सेम टाइम another very important component is career development। देखें, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में हमने शुरू में भी एक डिफरेंस क्रिएट किया था। ट्रेनिंग क्या है कि ट्रेनिंग इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड और mechanism which helps a person to do his or her current job much better or rather better than the current scenario। कि एक ऐसा मैकेनिज्म है ट्रेनिंग जिसमें हम उस पर्सन को करंट जॉब को बेहतर तौर से परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं, उसको कोई ट्रेनिंग्स देते हैं, उसको कोई गाइडेंस देते हैं। करियर डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड इज समथिंग विच विल हेल्प दैट पर्सन फॉर हिज और हर फ्यूचर ग्रोथ। मे बी वो पर्सन यहाँ पे रहे, बेशक वो कहीं और चला जाए, तो उसकी ये चीज़ काम आए। हो सकता है इसकी डायरेक्ट रेलिवेंस इस जॉब से ना हो, इनडायरेक्ट रेलिवेंसी हो
फॉर एग्जांपल हम किसी किस्म की उसको ऐसी सर्टिफिकेशंस करवाते हैं जो डायरेक्टली तो इस ऑर्गेनाइजेशन में रिलेटेड काम नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली काम आ रहा है, लेकिन हो सकता है वो कहीं और जाए तो उसके बहुत काम आए। सच है कि हम अपने वर्कर्स को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कोई ट्रेनिंग दे देते हैं या हम उनको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के किसी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दे देते हैं। ऑल ऑफ दीज डिफरेंट थिंग्स आर may not be directly related to that person's current job but may help that person to grow in career, maybe within this organization or maybe outside the organization. अब ये जो हमने स्टेप्स परफॉर्म किए कौन से, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट और करियर डेवलपमेंट के, इसकी आउटपुट आपके पास क्या आ रही है? द आउटपुट इज दैट वी विल बी एबल टू रिटेन कॉम्पिटेंट एंड हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज। हम क्या किस चीज में कामयाब हो जाएंगे? कॉम्पिटेंट और हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज को अपने पास रखने में। और अब इस पूरे हमारे एचआर प्रोसेस पे आप देख सकते हैं किस चीज का इंपैक्ट आ रहा है, एनवायरनमेंट का। यानी जो कुछ एनवायरनमेंट में हो रहा होता है, आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन या आपका एचआर प्रोसेस उससे आइसोलेशन में नहीं रह सकता। इसकी एग्जांपल मैं ये दूंगा यहाँ पे कि लेट्स से आपके एनवायरनमेंट में आपका जो कंपेटिटर है वो बहुत ज़्यादा सैलरीज पे लोगों को हायर करना शुरू कर देता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे भी उसका इफेक्ट होगा। अगर बाहर कोई आपका जो कंपेटिटर है वो अच्छी एचआर पॉलिसीज़ ले आता है, बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स देने लग जाता है, तो और जो आप ऑफ़र नहीं कर रहे, तो फिर आप पे भी उसका इफ़ेक्ट होगा, आपके एम्प्लॉयज़ पे भी उसका इफ़ेक्ट होगा। आपके एचआर प्रोसेस की जो पॉसिबल आउटपुट है जिसमें आप रिटेन कर पा रहे हैं अभी तक अच्छे एम्प्लॉयज़ को, हो सकता है वो ऐसा आउटपुट आपको ना मिले। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, that any HR process cannot remain in isolation. That HR process is basically affected by the environment. So now that is why we are going to now discuss what are the environmental factors affecting HRM. The first one is employee labor unions. You see, different organizations have their labor unions. These labor unions can be within the organization or that can be a part of a major or bigger labor union which may be on the city level, maybe on the industry level or others. अब लेबर यूनियंस का बेसिक आइडिया क्या है? आपकी जितनी भी लेबर आपके पास काम कर रही है वो एक मैकेनिज्म के थ्रू गुजरने के बाद अपना कोई नुमाइंदा या अपने कुछ नुमाइंदे या रिप्रेजेंटेटिव्स आइडेंटिफाई करते हैं which tends to then bargain or with the organization or within the industry आपके बेनिफिट्स के लिए, आपके राइट्स के लिए। ये जो आपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी यूनियन के आइडेंटिफाई किए हैं या सिलेक्ट किए हैं या नॉमिनेट किए हैं या इलेक्ट किए हैं, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये डिफरेंट इश्यूज़ पे आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन से बारगेन करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, उनसे डिस्कशंस करेंगे और नेगोशिएट करेंगे। So organizations that represent workers and seek to protect their interests through collective bargaining. Collective bargaining agreement क्या होता है? A contractual agreement between a firm and a union elected to represent a bargaining unit of employees of the firm and they bargain for the wages, hours and the working conditions. लेबर यूनियन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी होती है, इंडस्ट्री के लेवल पे भी होती है, शहरों के लेवल पे भी होती है, कंट्री लेवल पे भी होती है। और इन लेबर यूनियंस को आप बीइंग वर्कर और लेबर और मैनेजर्स की भी अपनी होती हैं। सो यू टेंड टू आइदर नॉमिनेट देम, आप नॉमिनेट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, बट इनका काम, इन लोगों का क्या होता है कि ये बारगेन करते हैं, निगोशिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑन योर बिहाफ, ताकि आपकी वेजेस के लिए, आपकी वर्किंग कंडीशंस की इम्प्रूवमेंट के लिए और दूसरे इश्यूज़ पे जिन पे आपको कोई प्रॉब्लम हो उस पे आपको रिप्रेजेंट करते हैं और मसले का हल करते हैं। अब ये लेबर यूनियंस जो हैं, जो मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकती हैं और बाहर भी हो सकती हैं। तो जो बाहर की लेबर यूनियन है जिसका आपकी और लेबर यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है हिस्सा है,
तो अगर बाहर की लेबर यूनियन स्ट्राइक पे जाती है तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लेबर यूनियन को भी स्ट्राइक पे जाना पड़ता है। इसी तरीके से बाहर की लेबर यूनियन अगर कोई नई पॉलिसी लेके आ रही है तो आपकी जो लेबर यूनियन है, जो उसका पोर्शन है या उसका कंपोनेंट है, ये उससे इफेक्ट हो रही है, तो वो भी नई पॉलिसी के लिए फिर कोशिश शुरू कर देगी। दूसरी क्या चीज़ एनवायरनमेंट से इफ़ेक्ट करती है, कंपोनेंट एनवायरनमेंट का कंपोनेंट होते हुए आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एचआर पॉलिसीज़ को इफ़ेक्ट करती है, दैट इज़ गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट के लॉज अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आती है, कोई चेंज आती है, तो वो आपकी एचआर पॉलिसीज़ को भी इफ़ेक्ट करेगी। कैसे? फॉर एग्जांपल ये कहा जाए, रूल आ जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ है कि जी वर्कर्स के लिए मस्ट है कि उनको आपने जो है डेली वेजेस के जो लोग हैं उनको आपने डेली वेजेस देनी है। जो आपके मंथली वेज वाले लोग हैं, सैलरी पे है, उनको आपने फर्स्ट 5 डेज़ के अंदर पेमेंट देनी है। या ईद पे कोई गवर्नमेंट रूल आ जाता है कि जी ईद की सैलरी जो है, अगर ईद यकम को आ रही है, फर्स्ट को आ रही है, सो यू नीड टू गिव देम सैलरी एटलीस्ट 5 to 7 days अर्लियर। तो फिर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के तौर पे आ रहे हैं, दे टेंड टू इफेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। सो लिमिटिंग मैनेजरियल डिस्क्रिशन इन हायरिंग, प्रोमोटिंग एंड डिस्चार्जिंग एम्प्लॉयज, किसी हद तक गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो हायरिंग के, फायरिंग के, सिलेक्शन के रूल्स को भी इफेक्ट करते हैं। बट फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का रूल आ जाता है कि जी आपने इतने % लोग जो है वो भी हायर करने हैं कि जो रिटार्डेड है या किसी हद तक फिजिकली उनकी दे आर लैकिंग सम, फिजिकली वो जो है वो फिट नहीं भी हैं, लेकिन आपने जो है उनको जो है लेट्स से कोई थोड़ा बहुत किसी की टांग में प्रॉब्लम है या वो चलने में उसको कोई इशू है, तो हमें ऐसे भी कुछ लोग हायर करने हैं, गवर्नमेंट रूल है, तो फिर हमें ऑब्वियसली हमारी हायरिंग और सिलेक्शन पॉलिसी उससे इफेक्ट होंगी। अच्छा एक्शन इसके सिलसिले में क्या होता है? व्हाट इज द पॉजिटिव रिजल्ट? द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम्स इनहेंस द स्टेटस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रोटेक्टेड ग्रुप। सो जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने कहा, जैसे जो माइनॉरिटीज़ को अगर प्रोटेक्ट कर रही हैं या मेंटली या फिजिकली रिटार्डेड लोगों को प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो फिर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स। और मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स में वी नीड टू फर्स्ट डिस्कस, अब हम इसमें 1 by 1 ये जो कंपोनेंट्स हमने देखे हैं HRM प्रोसेस के, इनको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज HRM प्लानिंग और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज व्हाट? इट इज द प्रोसेस बाय विच managers ensure that they have the right number or right kind of employees or people in the right places and they are there at the right time। यानी कि HRM प्लानिंग क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये है कि हमारे पास राइट नंबर में, यानी ना एक्सेस है ना शॉर्टेज है, हमारे पास सही तादाद में सही किस्म के लोग हैं, यानी कॉम्पिटेंट लोग हैं। अब 2-3 चीज़ें हैं इसमें। राइट नंबर का मतलब है ना एक्सेस है, ना सरप्लस है, ना शॉर्टेज है। राइट काइंड का मतलब है कि हमारे पास कॉम्पिटेंट हैं जो लोग हैं, नॉन कॉम्पिटेंट या इनकॉम्पिटेंट लोग हमारे पास नहीं हैं। राइट काइंड, राइट नंबर, और दे आर इन द राइट प्लेस, यानी जहाँ जिस किस्म की जॉब है उसी किस्म का पर्सन हमने हायर किया है। तो वो जो हमने एक रिक्वायरमेंट शुरू में आइडेंटिफाई की थी, दैट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, वो भी पूरी होना मस्ट है। और फिर क्या है? दे शुड बी अवेलेबल टू अस एट द राइट टाइम। ये नहीं है कि हमें जिस वक्त ज़रूरत थी उस वक्त तो हमारे पास बंदा नहीं था और अब जब हमारा काम हो गया है तो अब हमने वो जॉब जो है वो फिल कर ली है, बंदे को हायर कर लिया है। सो हमारा प्रोसेस को इतना डिले भी नहीं होना चाहिए, हमारी प्लानिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए कि राइट नंबर होना चाहिए, राइट टाइम, राइट काइंड ऑफ पर्सन होना चाहिए, राइट प्लेस पे होना चाहिए, एंड फॉर द राइट जॉब होना चाहिए, राइट टाइम पे होना चाहिए। एंड दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग व्हाट?
they are capable of doing their job or task effectively and efficiently. तो एक अच्छा HR planning क्या है? What is a good HRM planning? A good HRM planning results in right persons, right number, right kind of persons for the right job, available at the right time. Why? Because then they will be able to do their work efficiently and effectively. अब हमने इसके साथ साथ रिमेंबर, अभी कुछ देर पहले जब हम HR प्लानिंग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने ये कहा था कि HR प्लानिंग का बेसिक एम आपकी करंट और फ्यूचर नीड्स को कंपेयर करना है, उनको असेस करना है. सो आपकी करंट नीड क्या है उनको आइडेंटिफाई करना, फ्यूचर नीड्स क्या होंगी उसको असेस करना, उसको एस्टिमेट करना, उसको प्रिडिक्ट करना, और फिर इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करके ये डिसाइड करना कि गैप क्या है, डिफरेंस क्या है. क्या हमारे पास करंट ज़्यादा लोग हैं, फ्यूचर में कम नीड है, तो इसका मतलब है हमारे पास लोग सरप्लस हैं. और अगर हमारी करंट नीड ज़्यादा है और फ्यूचर में हम कम लोग हायर कर रहे हैं या नज़र नहीं आ रहा कि हायरिंग होगी या कितनी हायर करनी है, तो कि इसका मतलब है हमारे पास अभी से शॉर्टेज है. So that is what the slide is saying. Human resource planning avoids sudden talent shortage and surpluses. कि ये एक अच्छी HRM प्लानिंग आपको किस चीज़ से बचा लेती है कि अचानक पता चले कि हमारे पास या तो लोगों की शॉर्टेज है या लोग ज़्यादा है. सो बैलेंस रखे. अगर एक ऐसा सिस्टम जो है जो ना सरप्लस होने दे ना शॉर्टेज होने दे, तो फिर वो HR प्लानिंग जो है आपकी सही होगी. स्टेप्स इसमें 2 हैं, मैंने अभी पहले भी कहा कि ये एस्टिमेट करना, ये असेस करना कि आपकी फ्यूचर नीड्स क्या होंगी, और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि आपकी करंट नीड्स क्या हैं, और उनके साथ उसको मैच करके ये आइडेंटिफाई करना कि आपको करंटली शॉर्टेज है एम्प्लॉयज़ की या सरप्लस है. अब जब आप करंट असेसमेंट की बात करते हैं कि आपके पास करंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, उनका नेचर क्या है, क्या वो हमारे लिए राइट नंबर में राइट काइंड ऑफ पीपल हैं कि नहीं हैं, तो पहला उसमें जो चीज़ आप कंसिडर करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी. ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी क्या है? इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म वेयर यू रिव्यू दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करंट रिसोर्स स्टेटस इज. यानी हमारे पास करंटली इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड करना कि हमारे पास क्या चीज़ इस वक्त मौजूद है. ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री क्या है? इट्स अ रिकॉर्ड, अ काइंड ऑफ डिटेल्ड बायोडेटा कह लें कि हमारे पास ये मेंशन होता है कि हमारे पास ये लोग हैं, इनकी ये एजुकेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं, ये इनके स्किल्स हैं, ये इन्होंने ट्रेनिंग्स ली हुई हैं, करंटली ये जॉब परफॉर्म कर रहे हैं और ये जॉब्स फ्यूचर में परफॉर्म कर सकते हैं. सो एक ऐसा रिकॉर्ड कि जिसमें आपके तमाम एम्प्लॉयज़ के बेसिक एजुकेशन, स्किल्स, जॉब परफॉर्मेंस, उसका तमाम डिटेल्स मौजूद हों, दैट इज़ कॉल्ड HR इन्वेंट्री यानी ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री. और जब भी आपको असेस करने की ज़रूरत पड़े कि क्या हमारे पास जो वर्कर्स हैं फ्यूचर नीड्स के मुताबिक हैं कि नहीं हैं, तो आप सबसे पहले किसको रेफ़र करेंगे? इस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को. इसमें से आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में जो नीड्स आ रही हैं उसके मुताबिक हमारे पास लोग मौजूद हैं कि नहीं हैं. अब ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री जो है ये बेसिकली आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी दे रही होती है, दैट इज़ द जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस क्या है? इट्स एन असेसमेंट दैट डिफाइंस द जॉब and the behaviors which are necessary to perform the job. Job analysis क्या है? It's analyzing that what is the job और उस job से related क्या requirements हैं in terms of performance of task and also in terms of the behavior. एक person as a teacher हमने hire करना है let's say. अब उस टीचर की एक तो एवेल्युएशन है उसकी टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी उसकी एवेल्युएशन है उसके बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से. वो क्लास में अगर अच्छा पढ़ा रहा है दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन उसके साथ साथ उसका अपने
स्टूडेंट्स के साथ क्या बिहेवियर है, बर्ताव है, अपने कुलीग्स के साथ या अपने सुपीरियर्स के साथ उसका क्या, पीयर्स के साथ क्या बर्ताव है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो एनालाइजिंग अ जॉब not only thinks or takes in consideration the task which are required to be performed, बल्कि जो उसके साथ associated behavior requirements हैं कि उसको कैसा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एक पब्लिक रिलेशनिंग की जॉब है, उसके लिए आप एक पर्सन को हायर कर रहे हैं, तो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वो पब्लिक रिलेशंस में वो जो है उसको हर चीज़ का पता है, उसको पता है कि मैंने किन को मिलना है, कैसे मिलना है, बट उसको जो बिहेवियर की रिक्वायरमेंट्स हैं, कम्युनिकेशंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी बेसिकली इस चीज़ में जॉब के एनालिसिस में शामिल हो जाती है. Now the job analysis requires what it conducting interviews, engaging in direct observation and collecting the self reports of employees and their managers. Job analysis में हम क्या करते हैं, हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग द जॉब and the associated behaviors of different managers or workers in the organization, और हम एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि ये पर्सन जो जॉब परफॉर्म कर रहा है वो किस तरह कर रहा है, वो सही है या नहीं. अब दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई हैं, ये वर्ड्स आपको मैनेजमेंट में और फिर जब कोई आप स्पेशलाइज कोर्स एचआर में पढ़ेंगे तो उस वक्त फिर दोबारा आपके सामने आएगी. वन इज कॉल्ड एचआर, वन इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन, द अदर वन इज कॉल्ड जॉब स्पेसिफिकेशन. देखें जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है. जॉब स्पेसिफिकेशन ये है कि आप स्पेसिफाई करते हैं, आप नरेट करते हैं, आप मेंशन करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जॉब है जो हम एडवर्टाइज कर रहे हैं या जिसके लिए अगेंस्ट हम हायरिंग कर रहे हैं, इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. जैसे आप एड्स में देखते हो कि जी इतनी एजुकेशन हो, इतने साल का एक्सपीरियंस हो, तो दैट इज व्हाट दिस इज अबाउट जॉब स्पेसिफिकेशन. और ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट्स में पहले जॉब स्पेसिफिकेशंस बताई जाती हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पे जॉब डिस्क्रिप्शंस भी दी जाती हैं. जॉब स्पेसिफिकेशन तो आप समझ गए. जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताना कि जिसके बेसिस के ऊपर उस बंदे को आप शॉर्टलिस्ट करोगे या उसको कॉल फॉर इंटरव्यू भेजोगे. द नेक्स्ट स्टेप इज जॉब डिस्क्रिप्शन. द जॉब डिस्क्रिप्शन इज व्हाट, इट्स अ रिटन स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब व्हाट द जॉब इज ऑल अबाउट. यानी कि आप जब उस बंदे को, जनरली जब आप बंदे को हायर कर लेते हो तो आप उसको फिर जॉब डिस्क्राइब करते हो. वो ड्यूरिंग इंटरव्यू भी किया जाता है किसी हद तक. कई दफ़ा अब जो नया एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जॉब एडवर्टाइजमेंट्स, उसमें जॉब स्पेसिफिकेशन भी दी जाती है और फिर जॉब डिस्क्रिप्शंस भी दी जाती हैं, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या जिस इंटरव्यू में आप आज जा रहे हो उसमें जॉब की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको करना क्या पड़ेगा. और बेसिक एजुकेशन तो हो सकता है सबकी हो, कहीं ना कहीं वहाँ पे हम आपके वो स्किल्स एवेलुएट कर रहे होते हैं जो उस जॉब को अच्छा परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है. और फिर जब आप एक बंदे को हायर कर लेते हैं फिर भी उसको आप उसकी जॉब डिस्क्राइब करते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन देते हैं कि भाई ये काम आपने, ये वही काम होंगे जिसके अगेंस्ट फिर आप उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे 1 साल बाद या 6 महीने बाद, जो भी आपका सिस्टम है, कि क्या वाकई इस बंदे ने ये काम सही तौर पे किया है या नहीं किया है. अब यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई जा रही है जिसमें हम सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज़ को और डिमांड ऑफ एम्प्लॉयज़ को बैलेंस दिखा रहे हैं. यानी हमेशा ऐसा सिस्टम एचआर प्रोसेस होना चाहिए कि आपका जो सप्लाई और डिमांड में बैलेंस होना चाहिए. यानी जितने आपको लोग रिक्वायर्ड हैं वो कॉन्स्टेंटली आपके सिस्टम में एंटर होते रहें और एक बैलेंस मेंटेन रहे. अब इसको करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, आपको अब फोरकास्ट करना पड़ेगा अपनी डिमांड को प्रॉपरली, और एट द सेम टाइम आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें किस किस्म के नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ की ज़रूरत है. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में ग्रोथ नज़र आ रहा है फिर ज़ाहिर बात है आपको लोग भी ज़्यादा चाहिए होंगे. अगर उसमें कहीं कोई डिक्लाइन आ रहा है या स्टैग्नेंट हो रही है मार्केट तो फिर आपको लोगों को उसी हिसाब से अपने पास हायर करना पड़ेगा. सो सप्लाई और डिमांड ऑफ एम्प्लॉयज़ में बैलेंस होना चाहिए.
अब आगे हम रिक्रूटमेंट एंड री रिक्रूटमेंट पे। मैंने शुरू में कहा रिक्रूटमेंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल एप्लीकेंट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट है hiring a person, identifying the right person and selecting that right person as a next step. So right person को identify करना, capable person को identify करना, उसको attract करना अपनी organization की तरफ कि वो आए, इंटरव्यू दे, अपीयर हो किसी भी जॉब के इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में, और ताकि आप उसको फिर सिलेक्ट कर सकें आगे चल के। डी रिक्रूटमेंट ऑन दी अदर हैंड क्या है, ये नेगेटिव पॉइंट है। जब ऑर्गेनाइजेशन के पास सरप्लस एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं, इतनी जॉब्स या काम नहीं होता, तो फिर उसको कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ को फायर करना पड़ता है, उनको ले ऑफ करना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड डी रिक्रूटमेंट। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ सरप्लस ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द वर्क फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डी रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट की डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, जिसमें से एक यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। पहला जो यहाँ पे आपको है दैट इज़ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो लाजमी नहीं है कि न्यूज़पेपर्स पे ही ऐड दे। अब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऑनलाइन अपनी वेबसाइट्स जो हैं उस पर भी एडवर्टाइज करती हैं जॉब्स को, या और डिफरेंट ऐसी वेबसाइट्स पे जहाँ पे लोग जाते हैं, जैसे मेल चेक करने के लिए, या सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उसके ऊपर मैसेज दे देते हैं ताकि लोग जो हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन लें और जॉब्स पे अप्लाई करें। सो रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू द इंटरनेट, मे बी थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट्स। इसके अलावा ऑनलाइन रिक्रूटर्स भी हैं, ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आप अपना CV जो है वो अपलोड कर दें, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भेजते हैं, और अगर आपके मुताबिक कोई जॉब नज़र आएगी तो लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। द लास्ट कंपोनेंट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन को देखते हैं कि सिलेक्शन क्या है। इट्स एन एक्सरसाइज, it's a mechanism in predicting which applicant, if hired, will or will not be successful in performing well on the criteria the organization uses to evaluate performance. Selection क्या है? एक एक्सरसाइज है, एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ऐसे लोगों को सेग्रीगेट करते हैं, अलहदा कर लेते हैं जो आपके नज़दीक, आप अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और ऐसे लोगों से आप एक्सक्यूज़ कर लेते हैं, उनको नहीं सिलेक्ट करते जो आपके नज़दीक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। सो सिलेक्शन एक प्रोसेस का नाम है, एक स्टेज का नाम है, एक ऐसी एक्सरसाइज का नाम है जिसमें आप ऐसे लोगों को अलहदा कर लेते हैं कि जो आपके नज़दीक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस सही देंगे, और ऐसे लोगों को अलहदा कर देते हैं, उनसे एक्सक्यूज़ कर लेते हैं जो आपके नज़दीक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरे नहीं करेंगे। थोड़ी सी बात जो है वो सिलेक्शन एरर्स की कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सिलेक्शन एरर क्या है, एरर्स कब होते हैं, यानी अगर सही पर्सन को आप सिलेक्ट नहीं कर पाए तो वो एरर है, और गलत पर्सन को सिलेक्ट कर लेना भी एरर है। तो एक रिजेक्ट एरर है और एक एक्सेप्ट एरर है। रिजेक्ट एरर क्या है कि रिजेक्टिंग द एरर्स फॉर पोटेंशियली सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स, ऐसे पर्सन को रिजेक्ट कर देना जो सही था, या एक्सेप्ट कर लेना ऐसे पर्सन को कि जो सही नहीं था। ये आपके सामने जो एक फिगर आ रही है ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। ये देखें, आपके पास एक साइड पे सिलेक्शन डिसीजन है जो एक्सेप्ट करना है, पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया या उसको रिजेक्ट कर दिया, और फिर लेटर ऑन जो उसकी जॉब की परफॉर्मेंस है उसमें वो सक्सेसफुल रहा या अनसक्सेसफुल रहा। अच्छा, करेक्ट डिसीजन पहला क्या है कि आपने एक ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट किया जो सक्सेसफुल रहा अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में, तो ये आपका करेक्ट डिसीजन है। लेकिन अगर आपने एक ऐसा पर्सन एक्सेप्ट कर लिया जो लेटर ऑन अपनी जॉब में अनसक्सेसफुल रहेगा, तो फिर वो आपका एरर है, लेकिन किस चीज़ का, एक्सेप्टेंस का, यानी एक्सेप्ट किया और एरर हो गया। रिजेक्शन एरर क्या है कि आपने एक ऐसे पर्सन को रिजेक्ट कर दिया जो लेटर ऑन जॉब में सक्सेसफुल था, उसने अच्छी परफॉर्मेंस कहीं और जाके दिखाई या आपको पता चला, तो वो आपका रिजेक्शन एरर है। और दूसरा करेक्ट डिसीजन क्या आपका है कि आपने सही बंदे को रिजेक्ट किया और पता चला वो कहीं और जाके उसने जॉब परफॉर्म की तो वो अच्छी नहीं की। हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिलेक्शन टूल्स होते हैं। वी हैव एप्लीकेशन फॉर्म्स, हम एप्लीकेशन फॉर्म्स देते हैं लोगों को, वो भर के हमें अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं।
हम उसके बेसिस के ऊपर उनकी सिलेक्शन करते हैं, या हम जो है कोई रिटन टेस्ट रख देते हैं, लोग अपीयर होते हैं, हम उसके रिजल्ट्स को चेक करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये बंदा जो है इसका नॉलेज या स्किल्स हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है। परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट भी होते हैं, यानी अगर आपने किसी बंदे की ड्राइविंग चेक करनी है तो आप क्या करोगे, आप उसे कहोगे गाड़ी चला के दिखाओ, या अगर आप जहाज़ एक पायलट का इंटरव्यू ले रहे हैं तो लाजमी तो नहीं है कि हो सकता है आप एक्चुअली जहाज़ में भी उसको बिठा के इंटरव्यू लोगे, लेकिन हो सकता है कि आप एक ऐसी सिमुलेशन दे दें, कंप्यूटर की स्क्रीन आपके सामने हो, आप उस पर करके जहाज़ उसको पायलट के तौर पे करके देख रहे हैं। सिमुलेशन इस तरह भी हो सकती है कि आप उसको कहते हैं कि मुझे ये कंप्यूटर में ये जो पेज है तुम्हारी टाइपिंग का टेस्ट है, ये टाइप करके दिखाओ, तो वो सिमुलेट करके दिखाएगा, वो करके दिखाएगा। इंटरव्यूज़ हैं, आप सिंपली उसका इंटरव्यू ले लेते हैं वर्बली और उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके तो उसकी सिलेक्शन कर लेते हैं। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन है, आप उसे कहते हैं अपने रेफरेंसेस देना, तुमने जहां पहले काम किया है वहां के रेफरेंसेस देना, आप वहां पे जाके मालूमात लेते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वहां पे उस पर्सन की क्या जॉब थी। फॉर एग्जांपल जैसे पुलिस में और बाकी महकमों में रखने से पहले लोगों की बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस भी की जाती हैं। कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहां पे फिजिकल एग्जामिनेशंस भी होते हैं, जैसे आर्मी में सिलेक्शन के लिए आपका जो है वो मेडिकल टेस्ट भी होता है, तो फिजिकल एग्जामिनेशंस भी कुछ जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। ये मिक्स एंड मैच भी है, कुछ में एक से ज़्यादा चीज़ें आपको नज़र आएंगी जहाँ पे आप फॉर्म भी भरते हैं, फिर रिटन टेस्ट भी देंगे, फिर आपका इंटरव्यू भी होगा। तो ये लाजमी नहीं है कि इंडिविजुअली हो, ये सारी भी एक जगह भी हो सकती हैं और एक एक दो भी आपको डिफरेंट सिलेक्शन टूल के तौर पे नज़र आ सकती है। थोड़ी सी बात इसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की है, एक इसमें स्लाइड आ रही है। वैलिडिटी ये है कि आपने जो मैकेनिज्म सेलेक्ट किया है वो वाकई ही उस पर्सन की सिलेक्शन के लिए, यानी जो आपने डिवाइस या मैकेनिज्म सेलेक्ट किया है, जैसे रिटन टेस्ट है या कोई क्वेश्चनर उससे भरवाया है या उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया है, वो वाकई ही उस पर्सन की सिलेक्शन में या उस जॉब से रिलेटेड सिलेक्शन में वैलिड है या नहीं है। यानी आपने जो क्वेश्चन उससे पूछे हैं, लेट्स से वो क्वेश्चन तो हो उससे आपने पूछा हो कि आप कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करना आता है या नहीं आता है, उससे रिलेटेड हो, और पता चले वो टेस्ट गलत दे दिया है, वो जॉब कंप्यूटर ऑपरेटर की नहीं है, वो जो थी वो किसी और चीज़ की जॉब थी, पर्सन को आपने टेस्ट गलत दे दिया है, क्वेश्चन उससे कुछ और पूछ लिए। यानी जॉब और जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए, वो वैलिड होने चाहिए। सेकंड चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है रिलायबिलिटी की, तो वैलिडिटी में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। प्रूवन रिलेशनशिप बिटवीन द सिलेक्शन डिवाइस यूज्ड एंड सम रेलिवेंट क्राइटेरियन फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो आप मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, जो आप क्राइटेरियन यूज़ कर रहे हैं वो और जो जॉब है उसका रिलेशनशिप होना चाहिए। टेस्ट में ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए, इंटरव्यू में ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए जो उस जॉब से रिलेटेड नहीं है जिसके लिए वो पर्सन इंटरव्यू देने आया है। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि क्या वाकई ही अगर ये टेस्ट किसी ने 100% इस पे परफॉर्मेंस दिखाई है, 100 मार्क्स लिए हैं, तो वो उतना ही कैपेबल भी है और वो उतने ही अच्छा जॉब परफॉर्म भी कर सकेगा। रिलायबिलिटी क्या है, क्या कितने % आप श्योर हो कि अगर ये जो हमारा सिलेक्शन टूल है अगर ये कहता है ये पर्सन सही है तो वो वाकई ही सही पर्सन है भी या नहीं। So the degree of consistency with which a selection device measures the same thing, individual test scores obtained with a selection device are consistent over multiple testing variance instances। जब भी आप उसको टेस्ट करेंगे तो अगर किसी के 50 मार्क्स आ रहे हैं तो 50 का मतलब है वो वाकई ही ठीक है, पास है, यानी वो अच्छा एम्प्लॉई है। अगर किसी के अगली दफ़ा 60 मार्क्स आ जाते हैं लेकिन वो उतना अच्छा नहीं निकलता तो इसका मतलब है आपका जो टूल है, जो आपका मैकेनिज्म है सिलेक्शन का, जो आपने डिवाइस यूज़ किया है, वो टेस्ट या एग्ज़ाम या जो भी है वो रिलायबल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी नाउ कंक्लूड आवर लेक्चर नंबर 21। आज के लेक्चर के अंदर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ HR देखा कि क्या है, HRM प्रोसेस को देखा, हमने HR की बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं HR प्रोसेस के उनको डिस्कस किया, और अभी हमने किसी हद तक सिलेक्शन को डिस्कस किया है। सिलेक्शन की कुछ आइटम्स जो हैं वो हो सकता है हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करें।
Till the next time, from me, it's Allah Hafiz.